Hello everyone, welcome back to my channel. This side Divyanshi Divakar and you are watching The Government Educator. तो चलिए हमने हमारा पार्ट 1 कंप्लीट कर चुका है अबाउट NEP 2020। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके आई बटन में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, वहाँ पे जाके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। रही बात पार्ट 2 की, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस। जो हमारा 31st क्वेश्चन है, चलिए हम उसकी तरफ बढ़ते हैं without wasting any time. So, fill in the blanks. NEP 2020 set the goal to achieve 100% gross enrollment ratio in preschool to secondary level. यानी कि यहाँ पे स्कूल एजुकेशन की बात की गई है, तो स्कूल एजुकेशन में 2030 तक का गोल रखा है 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के लिए। एंड वहीं पे NEP ने एक और गोल की बात की है, दैट इज़ फॉर दी हायर एजुकेशन। एंड हायर एजुकेशन में 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की बात करी गई है टिल 2035। तो आपको ये चीज़ भी साथ में याद रखनी है। Now we have a question number 32. NEP 2020 recommends that the Government of India will constitute a fund to build the nation's capacity to provide equitable quality education for girls as well as transgender students. Okay. Now what will be the name of this fund? इस fund का नाम क्या होगा जो कि girls and transgender students के लिए बनेगा? So this fund is your C, जेंडर इंक्लूजन फंड। ओके, सो जेंडर इंक्लूजन फंड आपका बनाया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज CWSN स्टैंड्स फॉर? यानी कि CWSN का फुल फॉर्म क्या है? सो इट स्टैंड्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ओके, it stands for children with special needs. Now, if we talk about question number 34, according to UDISD 2016-2017 data, how many percent of India's public primary schools have less than 30 students? Okay, so 34 का आपका आंसर हो जाएगा A, that is 18%. Now, if we talk about ECCE, आप सबको पता है ECCE का फुल फॉर्म क्या है? ECC is Early Childhood Care and Education. Shall be delivered through a significantly expanded and strengthened system of early children education institution consisting of what? Stand-alone Anganwadis, stand-alone preschools, Anganwadis co-located with primary schools, या all of the above? तो 35 का आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इन तीनों की बात करी गई है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 36, NHERC स्टैंड्स फॉर, तो NHERC का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म दीक्षा? देखिए, इसकी बात हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में की थी एंड मैंने आपको कमेंट सेक्शन में जाके दीक्षा का फुल फॉर्म लिखने के लिए भी बोला था। दीक्षा का फुल फॉर्म आपका है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो आपका आंसर हो जाता है बी। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेपरेट फंड दैट इज अलोकेटेड फॉर इंक्लूजन ऑफ वुमेन एंड ट्रांसजेंडर पीपल इन NEP? अभी हमने इसकी बात की थी, सो इट वाज 38 का आंसर आपका है C, दैट इज जेंडर इंक्लूजन फंड। Now, we have a question number 39. Which of the following reforms was included in NEP 2020? Equitable and inclusive education, क्या इसकी बात की गई है? बिल्कुल करी गई है। Ensuring universal access at all levels, बिल्कुल। New curricular and pedagogical structure, that is 5+3+3+4, बिल्कुल। 10+2 का आपका जो पहला स्ट्रक्चर चलता था उसको हटा के अब 5+3+3+4 कर दिया गया है। So the answer will be all of the above. Now we have a question number 40. When India did adopt Goal 4, that is Sustainable Development Goal 4 of the 2030 Agenda for Sustainable Development, ठीक है, तो आपका 40 का आंसर हो जाएगा C, that is 2030, बिकॉज तभी हमने बात की है अबाउट व्हाट? स्कूल एजुकेशन टिल 100%
ग्रॉस एनरोलमेंट, ठीक है. नाउ वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 41. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 41. The learning outcomes of foundational learning have been divided into 3 different developmental goals. Number 1, children become involved learners and connect with their immediate environment. Children maintain good health and well-being. Children show passive learning as they don't reciprocate. Children become effective communicator. तो देखिए इसमें से आपका कौन सा आंसर जो है वो सही है. सो 41 का आपका आंसर हो जाएगा 4, दैट इज 1, 2 एंड 4. देखिए 3 बिल्कुल ही गलत है बिकॉज चिल्ड्रन शो पैसिव लर्निंग बच्चा नहीं शो करेगा, ठीक है. एंड दे डोंट रेसिप्रोकेट, दे विल रेसिप्रोकेट. ओके, तो इस चीज़ की बात नहीं की गई है. नाउ क्वेश्चन नंबर 42, what kind of pedagogy has been recommended as per the FLN? Now what is the full form of FLN? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. तो FLN में किस पेडागोजी की बात की गई है, किस पेडागोजी को रिकमेंड करता है हमारा FLN? तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा टॉय बेस्ड पेडागोजी. ओके, नाउ वी हैव 43 क्वेश्चन. As per the FLN, the major aspects and components of early mathematics are pre-number concept, algebra, measurement, shapes and spatial understanding. तो 43rd का आपका आंसर हो जाएगा 3, दैट इज प्री नंबर कॉन्सेप्ट, देन मेजरमेंट, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग. देखिए एल्जेब्रा जो है वो बच्चा बहुत हायर लेवल पे जाके पढ़ता है. तो FLN में बेसिक न्यूमरेसी की बात की गई है जिसमें हमारे नंबर का कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, लाइक 2D 3D. ओके, now we have a question number 44. The key components in fundamental language and literacy are oral language development, reading comprehension, culture of reading, inclination towards reading या reading fluency textbook. तो देखिए 44 का आपका आंसर बन जाएगा 2, that is oral language development, reading comprehension, culture of reading, inclination towards reading and reading fluency textbook. तो चारों ही चीज़ों की बात की गई है आपके FLN में. ओके, दीज आर दी बेसिक what foundational language. Okay, this is basics about the language learning. Now we have question number 45. According to NEP 2020, what is the full form of ECCE? देखिए अभी ही हमने just discuss किया था ये. ECCE is what? Early Childhood Care and Education. तो 45th का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, that is Early Childhood Care and Education. Now, the new education policy is based on pillars. How many pillars does NEP 2020 have? तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा 5. एंड इसके बारे में हमने हमारी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था. 5 आपके फंडामेंटल पिलर्स कौन कौन से थे, रिवाइज कर लेते हैं. नंबर 1 वॉज एक्सेस, नंबर 2 वॉज इक्विटी, नंबर 3 वॉज क्वालिटी, number 4 was affordability, and after affordability the 5th pillar was accountability. okay, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए because this is the basic 5 pillars of the NEP 2020. okay, now we have a next question. National Education Policy 2020 recommends what? so आपका आंसर हो जाएगा मल्टीलिंगुअलिज्म. ओके, मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करता है आपका NEP 2020, जिसमें ये बात भी की गई है कि 5th क्लास तक जो बच्चा है वो अपनी रीजनल लैंग्वेज, अपनी मदर टंग जो उसकी होगी, ठीक है, नॉट सॉरी रीजनल लैंग्वेज, बट 5th क्लास तक वो अपनी मदर टंग में सिलेबस अपना पढ़ सकता है. ओके, देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स दैट लर्निंग शुड बी, लर्निंग कैसी होनी चाहिए NEP के अकॉर्डिंग. सो आपका इसका आंसर हो जाएगा एक्सपीरियंशियल. ठीक है, आपको बच्चों को उनके एनवायरनमेंट में पढ़ाना है. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 49. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज एम्फेसिस ऑन व्हाट? सो 49 का आपका आंसर होगा
conceptual understanding. Now we have a 50th question. In the context of assessment, what kind of report card for students has been proposed in National Education Policy NEP 2020? NEP 2020 में किस तरह के रिपोर्ट कार्ड की बात की गई है बच्चों के लिए? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड. ओके, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा. सो हमारी हाफ सेंचुरी हो चुकी है एंड दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 51. सो आपका 51 क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेज पेडागॉजिकल शिफ्ट फ्रॉम. सो 51st का आपका आंसर हो जाएगा रोट लर्निंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. ओके, रोट लर्निंग को छोड़ के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर शिफ्ट की गई है इन NEP 2020. ओके, नाउ इन 52nd क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइजेज ऑन, किसके ऊपर बात की गई है? देखिए फिर से ये बेसिक आपके NEP 2020 के जो फंडामेंटल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी बात करी जा रही है. ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्लैक्सिबल मल्टीपल लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग. ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी कि रॉट लर्निंग को छोड़ के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. नाउ 53 क्वेश्चन, as per National Education Policy 2020, assessment of learners should include the progress as well as uniqueness of learners in. So 53rd का आपका आंसर हो जाएगा in cognitive, affective, psychomotor domains. Okay. Now 54th question, National Education Policy 2020 proposes reduction in content of school curriculum, increased flexibility of school curriculum, emphasizes on rote learning, emphasizes on critical thinking. तो 54th का आपका आंसर क्या होगा? 3. बिकॉज रोट लर्निंग की बात तो की ही नहीं गई है, हमने रोट लर्निंग को छोड़ के क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की बात की है. ओके, सो आपका आंसर हो जाएगा 3rd. नाउ वी हैव 55 क्वेश्चन. द FLN मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय. FLN मिशन जो है वो किसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको हम पहले क्या बोलते थे? MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. ओके, नाउ 56th क्वेश्चन, विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू इशू एन ऑर्डर pertaining to the इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020. सो NEP 2020 सबसे पहले कौन से स्टेट में इम्प्लीमेंट करी गई? तो इसका आपका आंसर बन जाएगा 56th का कर्नाटका. ठीक है, कर्नाटका में सबसे पहले आपकी NEP 2020 जो है वो इम्प्लीमेंट हुई. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 57. व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन द NEP रिगार्डिंग लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स? सबसे पहला आपका ऑप्शन आ जाता है, स्टूडेंट कैन स्टडी इन देयर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अंटिल 5th ग्रेड. क्या इसकी बात की गई है? बिल्कुल की गई है, आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है. ठीक है, अगले ऑप्शन भी अगर हम चेक कर लेते हैं, स्टूडेंट मस्ट स्टडी इन इंग्लिश स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ग्रेड. नो, ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है. स्टूडेंट्स कैन ओनली स्टडी इन हिंदी और संस्कृत. नो, मदर टंग में बच्चे पढ़ सकते हैं. स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी इन देयर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज. बिल्कुल ही गलत. तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है करेक्ट. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 58. व्हाट इज द एम ऑफ नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF? इसका फुल फॉर्म आप ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, इसका एम क्या है बेसिकली? तो इसका एम होता है टू इम्प्रूव डिजिटल टीचिंग मेथड्स. ओके, नाउ 59th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द NEP 2020 by how much % the gross enrollment ratio in higher education to be raised? हायर एजुकेशन की अभी हमने बात की थी, तो 59th का आपका आंसर हो जाएगा 50%. ठीक है, हायर एजुकेशन में कितना होना चाहिए? 50% टिल 2035. एंड वहीं पे जो आपका स्कूल एजुकेशन था, स्कूल एजुकेशन में हमने देखा था कि स्कूल एजुकेशन में कितना होना चाहिए आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो? 100%. एंड कौन सी ईयर तक? 2030 तक.
Okay, now we have question number 60. According to the National Education Policy 2020, teacher will be able to teach lessons in mother tongue or regional language up to which grade? देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ग्रेड 5, ग्रेड 5th तक. ठीक है, सो दीज वर सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग NEP 2020. एंड ये जो आपके क्वेश्चंस थे ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स लाइक DSSB, आपका EMRS या फिर आपका KVS, NVS या और भी कोई अगर आपका UGC नेट टाइप एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे भी NEP 2020 आपका टॉपिक होता है, उस टॉपिक के आपके ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा. अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. इसी के साथ साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you will be notified with all the upcoming videos. इसी के साथ साथ अभी हमारे चैनल पे ICT की प्रॉपर सीरीज़ आने वाली है एंड उसमें आपका पूरे कॉन्सेप्ट की बात की जाएगी एंड अगर आप चाहेंगे तो हम उसमें क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे. सो चलिए तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें. टाटा बाय बाय एंड कीप हसलिंग.